انتظار کر رہے تھے کہ جب حالات بہتر ہوں سارے تعلیمی ادارے جو ہے ان کو کھول سکیں۔ 15 سپٹمبر سے ساری یونیورسٹیز، پروفیشنل کالجز ہیں، 9ویں اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں اس کی بھی اجازت ہو جائے گی۔ 23 سپٹمبر کو 6ویں، 7ویں اور 8ویں کی کلاسز جو ہیں کھل جائیں گی۔ 30 سپٹمبر کو کہ پرائمری کے سارے اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے گئے۔ ملک بھر میں سکولز کی 9ویں 10ویں کی کلاسز، کالجز اور یونیورسٹیز 15 ستمبر سے کھل جائیں گی۔ چھٹی سے 8ویں تک کی کلاسز 23 ستمبر جبکہ تمام پرائمری کلاسز 30 ستمبر سے کھل جائیں گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے بتدریج کھولنے کا اعلان کر دیا۔ طلبہ کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ تعلیمی ادارے میں داخل ہوتے وقت طلبہ کی اسکریننگ کی جائے گی۔ آدھے بچوں کو ایک دن اور باقی آدھے بچوں کو دوسرے دن بلایا جائے۔ مختلف تعلیمی اداروں میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ اور اسکریننگ ہوگی۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والے ادارے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کے حوالے کیا جائے کراچی کو۔ ہمت کیسے ہوتی ہے کسی کی یہ بات کرنے کی؟ میرے سامنے تو کرے، کوئی کہہ کے تو دیکھے۔ آپ چھوڑیں گے؟ میں تو ہوں، یہ سندھ کی عوام چھوڑے گی؟ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی کسی میں ہمت کیسے ہوتی ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میڈیا کے سوال پر 2 ٹوک جواب۔ کہا کوئی کہہ کر تو دیکھے، کیا سندھ کے عوام چھوڑیں گے؟ اس 1100 ارب میں سے 362 ارب روپے جو ہے وہ تقریباً وفاقی حکومت کا شیئر ہے اور تقریباً کوئی 750 ارب جو ہے وہ صوبائی حکومت کا، سندھ حکومت کا شیئر ہے۔ ہم یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے۔ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے۔ الٹا کہا گیا تھا کہ 300 ارب دے رہی ہے وفاقی حکومت اور جو باقی پیسے ہیں وہ صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ فیڈرل حکومت جو ہے وہ 611 ارب روپے کا حصہ ڈالے گی۔ وفاق اور سندھ نے کراچی کی بہتری کے لیے ہاتھوں میں لا لیے، دلوں سے میل نہیں گیا، ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سیاسی بد انتظامیوں کے باعث کراچی کے حالات بدترین ہوئے۔ ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت منصوبوں پر جلد عمل درآمد ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ کراچی پیکج کے فنڈ سندھ حکومت کو نہیں دے سکتے، سندھ حکومت پر اعتبار نہیں ہے۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی پیکج میں جو پیسہ دے وہ کراچی پر ہی لگے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی پیکج پر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 1 لاکھ روپے کیش، جام بھر کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے فی کس اور ہر زخمی کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خط لکھ کر وزیر اعظم سے مطالبہ۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں مانسون سیزن نے بڑی تباہی اور ناقابل تلافی تباہی مچائی ہے۔ 20 اضلاع میں 23 لاکھ لوگ بارشوں سے متاثر ہوئے۔ زرعی ترقیاتی بینک کے قرضے معاف کرنے اور ادائیگیاں مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ نہروں کے نظام کی بہتری کے لیے بھی 43 ارب روپے مانگ لیے۔ کراچی کا دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر اونچے اور سکھر بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کشمور سے سکھر تک دریائے سندھ کے دونوں جانب کچے کے تمام علاقے بت تک زیر آب آنے کا خدشہ۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے کچے کی دیہی آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی وارننگ جاری کر دی۔ دادو اور میرپور خاص اضلاع میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہیں ہو سکی۔ اب بھی کئی دیہات اور ایکڑوں پر پھیلی فصلوں میں پانی جمع۔ رحیم یار خان میں چاچا شریف کے مقام پر سیلابی ریلے سے کئی بستیاں زیر آب، لوگ گھر بار چھوڑ گئے۔ کپاس، چاول اور سبزیوں کی فصلیں بھی متاثر۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔
वाक़े की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी, इस्तग़ासा उसे साबित करने में नाकाम रहा। तफसीली फैसले में सब सामने आ गया। मुकदमा पहले नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ। 14 रोज की रिमांड में अब्दुल मजीद अचकज़ई की शनाख्त परेड नहीं कराई। ऐनी शाहिदीन ने भी मजीद अचकज़ई को नामजद नहीं किया। 20 गवाहों में से किसी ने भी मजीद अचकज़ई की गाड़ी चलाने की तस्दीक नहीं की। इस्तग़ासा मुल्ज़िम का जुर्म से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। केस में सजा देने के लिए ग्राउंड काफी नहीं। कोयटा की मॉडल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह कत्ल केस में साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकज़ई की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कोयटा पुलिस का बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कार की टक्कर से 6 साला बच्चा जान बहक। पुलिस ने सेक्रेटरी IT को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक सूबाई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुख्तार खान ही गाड़ी चला रहे थे। कराची में एक और मासूम करी को इंसान नुमा दरिंदों ने जिंदगी से महरूम कर दिया। ईसा नगरी की 5 साला मरवा की गुमशुदगी का मुकदमा जुमे को दर्ज हुआ। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात उसकी लाश कशराकुंडी से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती और कत्ल की तस्दीक हो गई। पुलिस ने 13 अफराद को हिरासत में ले लिया। DNA के लिए नमूने लेबोरेटरी भेज दिए। अगवा, ज्यादती और कत्ल के जुर्म में शक की सुई मोहल्ले की ही किसी शख्स के गिर्द घूमने लगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर SCCP के अफसर साजिद गोंदल की वालिदा उनकी गुमशुदगी पर गम से निढाल नजर आई। अपने बेटे की आदम बाजियाबी पर फट पड़ी। SECP के अफसर साजिद गोंदल की गुमशुदगी का केस IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि आप अपनी नाकामी तस्लीम करें। विफाकी दारुल हुकूमत में हर कोई खुद को गैर महफूज तस्वर कर रहा है। ऐसा एक रात में नहीं हुआ। मिस गवर्नेंस ने सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाया। आपकी कोशिशें नजर नहीं आ रही। अदालत ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए 17 सितंबर तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि क्या आपने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि विफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है? क्या आपने वज़ीर-ए-आज़म को बताया आपके मातहत इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज रियल स्टेट कारोबार में मुलव्वस हैं? कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो करप्शन होगी। ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਨਿਆਂ ਕੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। फैसलाबाद की शुगर मिल्स में 5 दिन काम करने वाले मेहनतकश के शनाख्ती कार्ड पर 36 लाख रुपए की चीनी फरोख्त करने का इंकशाफ। SBR का नोटिस मिला तो मेहनतकश असगर अवान के तो हाथों के तोते उड़ गए। मेहनतकश असगर अवान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2017 में 5 दिन शुगर मिल्स में मजदूरी की थी। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड होने पर शुगर मिल्स के अमले ने नया कार्ड बनाने के लिए कहा था। डॉक्टर माहा के अपने वालिद के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। डॉक्टर माहा मुनशियात इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी माहा को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। डॉक्टर माहा शाह केस के मरकजी मुल्जिम जुनैद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर माहा के वालिद की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद की तहसील साफी में संगे मरमर की कान बैठने से 8 मजदूर जान बहक। 6 मजदूरों को जख्मी हालत में निकाला गया।
थी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर खास आमद के मौके पर इंतजामिया ने रातों रात एयरपोर्ट के करीब मरकजी सड़क पर सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती कायम कर दी। बिलावल के सड़क से गुजरते ही मेडिकल कैंप और वेटरनरी कैंप का अमला सामान समेत गायब हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया डेरेची की मुल्क बदरी रोक दी। वजारत दाखिला के फैसले के खिलाफ सिंथिया की दरखास्त पर सिंथिया को बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि यकीनी बनाएंगे कि पिटिशन को मुकम्मल इंसाफ मिले। सिंथिया डेरेची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इंसाफ की तलाश जारी रहेगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग, कचरे और कीचड़ जमा रहने के असरात, शहर में बीमारियां फैलने का खदशा। सिविल अस्पताल के एमएस का कहना है कि टाइफाइड, हैजा समेत पेट की मुख्तलिफ बीमारियां रिपोर्ट हो रही हैं। डॉक्टर्स का शहरियों को पानी उबाल कर इस्तेमाल करने, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाने और मुरगन खानों से परहेज का मशवरा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि डॉलर कमाए बगैर लोगों के हालात नहीं बदल सकते। मईशत को कोरोना के नुकसान से निकलने के लिए मजीद 3 से 4 माह लगेंगे। मईशत को तरक्की देने के लिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर कराची के लिए काम कर रही हैं। अब्दुल हफीज शेख की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुफ्तगू, कहा कि GIDC का मामला खुश असलूबी से हल कर लेंगे। मुशीर खजाना ने ताजिरों को पेशकश की कि सेल्स टैक्स रिफंड की 72 घंटों में अदायगी ना हो तो उनसे राबता करें। ये भी कहा कि सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। आज हर 2 नंबर आदमी मुशीर और वजीर बना हुआ है। नैब चला लें या मुल्क, दोनों साथ नहीं चल सकते। कहा नवाज शरीफ की 3 सर्जरीज बाकी हैं। पार्टी का फैसला और नवाज शरीफ को मशवरा है कि वो इलाज करवा कर ही वापस आएं, बाकी उनका अपना फैसला है। नैब लाहौर ने LDA के साबिक DG आहद चीमा के खिलाफ तहकीकात बंद करवाने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने LDA सिटी केस में आहद चीमा समेत 9 अफराद के खिलाफ तहकीकात बंद करने की इस्तदा की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर LDA सिटी ने मुतासरीन को प्लॉट्स देने की यकीन दहानी करवा दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1112 स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाहौर में शादबाग, अंदरून शहर, मराका और कोट अब्दुल मालिक में भी नए रेस्क्यू स्टेशन फाल हो गए हैं। रेस्क्यू मुलाजमीन के अलाउंसेस का भी जायजा लेंगे और हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कल कहा तलागंग और खुशाब को आफत ज़दा करार देने की तजवीज़। कहा कि हालिया बारिशों से गुज़श्ता 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। डैम्स टूट गए, रास्ते मुनक़ता हैं, स्कूल गिर गए, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। नुकसानात का अदाला किया जाए। विफाक और सिंध के हुकूमती तर्जुमानों में अल्फाज की जंग। शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर मुर्तज़ा वहाब को मुर्तज़ा कज़ाब लिख दिया। कहा वो कराची पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। मुराद अली शाह उनको नकेल डालें, झूठ से मना करें। जवाब में मुर्तज़ा वहाब ने शहबाज गिल को डाक साहब लिखा और कहा कि आपने साबित किया कि आपने बेशर्मी और हठधर्मी की PhD की हुई है। चंदाखोरों और चोरों को हकीकत का क्या इल्म हो सकता है। पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजने के हामी वालिदैन की तादाद बढ़ गई। कोरोना के बाद स्कूल भेजने के मुखालिफ वालिदैन का तनासुब 79% से कम होकर 37% रह गया। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक इस साल जून में 79% वालिदैन ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र बच्चों को स्कूल भेजने की मुखालिफत की। सरकारी स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद के लिए फंड फराहम करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी हर्ज जल्द पूरा करने की कोशिश में बच्चों पर गैर जरूरी दबाव न डाला जाए
तालीमी साल में महदूद निसाब मुकम्मल कराया जाए, तालीमी नुकसान तवील दौरानिये में पूरा करने की कोशिश की जाए। तवील छुट्टियां खासकर बच्चियों का तालीमी सिलसिला टूटने का बायस बनती हैं। ऐसी बच्चियों की स्कूल वापसी के लिए खुसूसी इकदाम जरूरी हैं। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया गया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने सन 65 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। एमएम आलम ने 1 मिनट के अंदर अंदर भारत के 5 हंटर तैयारों का शिकार करके तारीख में अपना नाम रकम करवाया। इनमें से 4 तैयारे 30 सेकंड्स के अंदर मार गिराए। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात। कराची में राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर की कब्र पर एयर ऑफिसर कमांडिंग सदर्न एयर कमांड अब्बास घुमन ने फूल रखे और खाते पड़ी। 7 सितंबर 1965 का सूरज भारतीय फ़ज़ाइया के लिए बड़े नुकसान का पैगाम लेकर तलू हुआ। जंग के दूसरे दिन एमएम आलम ने चंद सेकंड्स में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे मार गिराए। स्क्वाड्रन लीडर मेविन मिडलकोट ने डॉग फाइट के दौरान कराची की जानिब बढ़ने वाले दुश्मन तैयारों का रुख वापस भारत की जानिब मोड़ दिया। इस फ़ज़ाई मार्के के हीरोज को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। अम्मात की मजमूई तादाद 6345 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 394 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 6542 है। मुल्क भर में 24 घंटों में 20,980 टेस्ट किए गए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 178 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारत कोरोना के मुतासरा ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया। मुसलसल दूसरे रोज 90,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। मुतासरीन की तादाद 42 लाख और अमवात 71,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में कोरोना के केस 64,60,000 से ज्यादा हो गए। स्पेन और फ्रांस के बाद बरतानिया में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा। सऊदी अरब फलस्तीन की आज़ादी और पुरअमन हल के लिए मौक़िफ़ पर कायम है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह मौक़िफ़। दोनों रहनुमाओं के टेलीफोनिक राबते में खित्ते की सूरत हाल और G20 के आइंदा इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 भारतीय शहरियों का मामला, जिस पर चीन का जवाब सामने आ गया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कभी तस्लीम नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश चीन के जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। लापता भारतीय शहरियों के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। भारत का दावा है कि 5 भारतीय शहरी अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए हैं। काहिल में उठने वाला समुद्री तूफान जनूबी कोरिया से टकरा गया। जनूबी कोरिया के जनूब मशरकी हिस्से में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। सैकड़ों परवाजें मनसूख, इमारतें मुतासिर, 1,500 से ज्यादा अफराद का इंखला। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 35, कराची और श्रीनगर में 34, इस्लामाबाद में 33, गिलगित में 32, कोयटा में 31, जम्मू में 27 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेड कोच मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरफराज को एक मैच खिलाकर फारिग करने का तासुर गलत है, वो प्लान का हिस्सा है। दौरा इंग्लैंड मजमूई तौर पर मुस्बत रहा, लेकिन नताइज के हवाले से अफसोस रहेगा। कहा बाबर आजम पावरफुल कप्तान है, उन्हें फैसले करने का इख्तियार है।
پاکستان کی پہلی ڈومیسٹک میچ ریفری سمن ذوالفقار کا ایک اور اعزاز پی سی بی نے ڈومیسٹک سیزن کے ریفری پینل میں شامل کر لیا. سمن ذوالفقار کا اگلا ہدف پی ایس ایل اور پھر انٹرنیشنل میچز میں ذمہ داری نبھانا ہے. کہا کہ انہیں شوق کی تکمیل میں 100 سال کی بھرپور حمایت حاصل. US اوپن ٹینس کے ٹاپ فیورٹ جوکووچ ڈرامائی انداز میں ڈسکوالیفائی کر دیے گئے. ٹورنامنٹ سے باہر جوکووچ نے پوائنٹ ضائع ہونے پر غصے میں گیند کو ریکٹ سے پیچھے کی جانب پھینکا جو لائن امپائر کو جا لگی اور وہ زخمی ہو گئیں. جوکووچ نے اپنی حرکت پر امپائر اور مداحوں سے معافی مانگ لی. اردو ادب کا بڑا نام معروف افسانہ اور ناول نگار اشفاق احمد کی تحریروں کی تازگی آج بھی برقرار. معروف قلمکار کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے.